ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ? ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2019 ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲ ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਹੀਦ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦਾਸ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲ ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਇਰ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਲਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਸਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਨ ਰੇਡੀਓ ਇਨਫੈਰੋਮੀਟਰ ਸਪੇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਜਾਇੰਟ ਸੋਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟੋਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੈ ਸਨਰਾਈਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਮ ਬ੍ਰਾਈਟਸਟੀਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਿਲਿਪ ਡਬਲਿਊ ਐਂਡਰਸਨ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 96 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਿਪ ਡਬਲਿਊ ਐਂਡਰਸਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਵਤਨਾਲੂ ਪੈਦਨਲਰਿਕੀ ਈਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਨੇਮ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਮ ਟੂ ਆਲ ਪੂਅਰਸ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਫ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਜਾਂ 12th ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਲਰਸ। $1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਹੈਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 189 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਏ MIB ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਏ MIB। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਗਲਾਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਪੇ ਦੁਆਰਾ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਫੋਨਪੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫੋਨਪੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਇਨ 2021। ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2022 ਦੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਗੁਇਨ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਓਰੇਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਲੀਮ, ਕਰੰਸੀ US ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਨੈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸੈਬੈਸਟੀਅਨ ਕੋਏ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਾਊਂਸਡ ਬਾਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ COP26 ਸਮਿਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ COP26 ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। COP26 ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 30 ਮਈ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਪਣਜੀ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਕੋ ਦੀ ਗਾਮਾ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਾਸਕੋ ਦੀ ਗਾਮਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਗੋਆ ਦੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ, 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਸ ਇੱਥੇ 40 ਨੇ। ਬੋਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗੋਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਮੋਲਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਹਾਵੀਰ ਹਰੀਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਹਰੀਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਵੀਰ ਹਰੀਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਾ ਰੈਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਂਦਲਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੇਤਰਵਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਕੋਤੀਗਾਂव ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਬੋਂਦਲਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੇਤਰਵਲੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਰ ਕੋਤੀਗਾਂव ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਲੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 4th April ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼। 4th April ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4th April ਨੂੰ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4th April ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4th April ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 21 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 21 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਪੋਇਟਰੀ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਪਪੇਟਰੀ ਡੇ। ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਡੇ, ਇੱਕ ਪਪੇਟਰੀ ਡੇ।
ये दोनों दिन डिस्कस किए सी, 4 दिन हो गए। इस तो इलावा इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, समथिंग इस तरीके का डे डिस्कस किया सी, एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च वाले दिन। बाकी ऑप्शन वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड थिएटर डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया सी 23 मार्च ਨੂੰ। 23 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सैलीब्रेट किया गया सी। नैक्सट है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय चेतना दिवस। अंतरराष्ट्रीय चेतना दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अप्रैल ਨੂੰ, यानी कि कल सैलीब्रेट किया गया सी 5 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। कदों ऑब्जर्व किया गया? 5 अप्रैल ਨੂੰ इसनों ऑब्जर्व किया गया, याद रखना है। इस तो इलावा अगर अप्रैल के डेज की आप गल करिए, 1 अप्रैल ਨੂੰ अपने ऑब्जर्व किया उत्कल दिवस या ओडिशा डे उत्कल दिवस कदों सैलीब्रेट किया गया? 1 अप्रैल ਨੂੰ। इस तो इलावा 2 अप्रैल ਨੂੰ अपने किहड़े दिन ऑब्जर्व किया? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 2 अप्रैल ਨੂੰ। 4 अप्रैल अपने हुणे डिस्कस किया, किहड़ा दिन डिस्कस किया? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे और 5 अप्रैल ਨੂੰ किहड़ा दिन है? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 5 दिन लंघ चुके हैं और अपने 4 दिन डिस्कस कर रहे हैं, इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। उत्कल दिवस, नैक्सट वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, तीजा इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे और चौथा इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। नेक्स्ट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफिशियली कंफर्म्ड बॉब वेटन इज द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा एक पर्सन ਨੂੰ ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन कहा गया। ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन किसनों कहा गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा बॉब वेटन। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? इंपोर्टेंट नेम है बॉब वेटन। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं यूके तो। 4th ऑप्शन यूके तो बिलोंग करते हैं बॉब वेटन। सोनू याद होगा एक नाम आप डिस्कस किया सी, चितेसु वतनाबे जेडे कि जैपनीज सीगे, जापान तो बिलोंग करते थे। चितेसु वतनाबे अपने 2 या 3 महीने पहले अगर थोड़ा याद होएगा आप डिस्कस किया इन्हों के बारे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इन्हों बनाया गया सी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन। इन्हों की उम्र सी 112 साल और 300 समथिंग दिन सी। इन्हों की डैथ हो गई सी 112 साल 355 दिन 112 साल 355वें दिन इन्हों की डैथ हो गई सी फैबररी इन्हों की डैथ हो गई सी। इन्हों के बारे आप डिस्कस किया चितेसु वतनाबे, ये ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन से। हुण उस तो बाद दोबारा सर्वे किया गया तो हुण ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन किन्हों बनाया गया? बॉब वेटन नूं बनाया गया और इन्हों की एज है इस टाइम 112 साल 8 दिन। अगर अज की तरीक के हिसाब से डिस्कस करिए 112 साल 8 दिन। वैसे इन्हों का डाटा जो लिया गया 30 मार्च तक का लिया गया। 30 मार्च तक ये 112 साल 1 दिन के थे। 112 साल 1 दिन के थे। इंपोर्टेंट है, याद रखना है चितेसु वतनाबे और ये नाम भी याद रखना है बॉब वेटन। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं आप। RBI हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स विच एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑन 1 अप्रैल। RBI द्वारा 1 अप्रैल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा RBI का फाउंडेशन डे है 1 अप्रैल ਨੂੰ RBI बनाया गया सी। किहड़े साल च बनाया गया सी? अगर किसी को याद है तो वो इसका आंसर काफ़ी ईजिली दे सकता है। RBI बनाया गया सी 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 अप्रैल 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI बनाया गया सी, यानी कि 85th फाउंडेशन डे सैलीब्रेट किया गया, या कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर किहड़ा? 85th एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑब्जर्व किया गया RBI द्वारा। ठीक है जी, ये याद रखना है। RBI 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया। हैडकुआटर की गल करिए मुंबई के विच है। RBI का हैडकुआटर कित्थे है? मुंबई के विच है। इत्थे दे गवर्नर कौन ने? शक्तिकांत दास इत्थे दे गवर्नर ने। इस तो इलावा RBI दे विच 4 डिप्टी गवर्नर्स होंदे ने। उन्हां दे नाम अगर आप डिस्कस करिए, सब तो पहले माइकल डी पात्रा रिसेंटली अपॉइंटेड ने। सब तो रिसेंटली अपॉइंटेड किहड़े ने? माइकल डी पात्रा। इस तो इलावा MK जैन, BP कनगो।
बीपी कनगो के बारे गल करिए, इन्हों की टर्म खत्म हुई सी 2 अप्रैल नूं। 2 अप्रैल नूं इन्हों की टर्म खत्म हो गई सी और इन्हों 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है। 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई है बीपी कनगो नूं। और चौथी पोस्ट NS विश्वनाथन जी की सीगी, जिन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट तो ड्यू टू सम हैल्थ इशू, इस करके यह चौथी पोस्ट हजे खाली चल रही है। ठीक है जी, ये याद रखनी है। अच्छा, RBI की सबसिडरीज की अगर गल करिए, RBI की 2 चीज़ां होर डिस्कस करते हैं। सब तो पहले RBI की सबसिडरीज होंदियां ने जिहड़ियां कि 4 ने। RBI की प्रिंटिंग प्रैस की गल करिए तो प्रिंटिंग प्रैस RBI की, क्वेश्चन च कन्फ्यूज नहीं होना, RBI की प्रिंटिंग प्रैस 2 ने। अगर टोटल प्रिंटिंग प्रैस गल करिए इंडिया के विच कितनियां ने, 4 प्रिंटिंग प्रैस ने जिथे नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और 4 प्रिंटिंग प्रैस कोई दस सकदा है? देवास, सालगोनी, नासिक, चौथी किहड़ी है? चौथी किहड़ी है, कौन दसेगा? चारों RBI की प्रिंटिंग प्रैसिस तुसीं दसनियां ने। इस तो इलावा 4 RBI की मिंट्स ने। मिंट्स का मतलब जिथे कॉइनस बनाए जाते हैं। RBI के कॉइनस बनाए जाते हैं, कित्थे बनाए जाते हैं यह दसनी है तुसीं कमेंट बॉक्स के विच। 4 कॉइनस और 4 मिंट्स, सॉरी 4 मिंट्स और 4 प्रिंटिंग प्रैस, ये कमेंट बॉक्स के विच तुसीं दसोगे। इस दे नाल नाल देवास, सालगोनी, मैसूर और नासिक, मैसूर और नासिक किहड़ी गौरमेंट ऑफ इंडिया की है और किहड़ी RBI दी। 2 गौरमेंट ऑफ इंडिया के ने और 2 RBI के ने, ये दसनिया ने। इस तो इलावा सबसिडरीज की आपां गल कर लैंदे आ। RBI की 4 सबसिडरीज ने। 4 किहड़ी सबसिडरीज ने, इन्हां बारे अगर आपां डिस्कस करिए, सब तो पहले DICGC। DICGC इंपोर्टेंट बनती है, इन्हां दी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बनती है, याद रखनी है। DICGC डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC। इस दे अंडर तुहानूं याद होएगा यह की करती है, इसे काम है अगर तुहाडे पैसे किसी बैंक के विच ने तो उसकी सेफ्टी देनी, यानी कि पहले इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक की सी। अगर तुहाडे पैसे चोरी होंदे ने तुहानूं 1 लाख रुपए दिता जाएगा। जिसकी लिमिट नूं रिसेंटली बजट के विच अनाउंस किया गया सी, लिमिट इंक्रीज करके 5 लाख कर दी गई सी, याद रखना है। इस तो इलावा BRMNMPL, इसकी फुल फॉर्म गल करिए, भारतीय रिजर्व मुद्रण नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीजी रैबिट, तीजी सबसिडीज का नाम है रैबिट, REBIT, रैबिट। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चौथी अपनी बनती है इंडियन फिस्कल टेक्नेड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। चौथी अपनी सबसिडरी है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। थोड़ी कन्फ्यूजिंग ने, थोड़ी काफ़ी टफ ने, आप 2-3 बार रिवाइज करांगे, ये अपने याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच जज बिकम द फर्स्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप गल करिए जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर नूं रिसेंटली UT बनाया गया और इंडियन आप याद होएगा कि जम्मू एंड कश्मीर दे विच जम्मू एंड कश्मीर का अपना लॉ चलता सी, अपना लॉ चलता सी। और अगर इत्थे इंडियन जो इसनूं UT बनाया गया तो इत्थे की किया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नूं अप्लाई कर दिता गया। इस दे विच फर्स्ट जज बने ने जिन्हों ने ओथ लीती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। पहले जोड़े जज होंगे सी इत्थे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट दे विच, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर शपथ लेंदे सी। वो किहड़े बने ने फर्स्ट जज, इन्हों का नाम है जस्टिस रजनीश ओसवाल। जस्टिस रजनीश ओसवाल फर्स्ट जज बने ने जिन्होंने इस दे अंडर शपथ लीती है। ठीक है जी। और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगर आप गल करिए गीता मित्तल, इंपोर्टेंट नेम है, फर्स्ट वूमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट वूमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कौन ने? गीता मित्तल। कृष्ण मुरारी, जस्टिस कृष्ण मुरारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंदे सी, चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। इन्हों प्रमोट करके जो सुप्रीम कोर्ट की
ਵਿੱਚ 30+1 ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 30+1 ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜੱਜਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 34। ਜਦੋਂ 34 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ। ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ। CJI ਅਗਰ ਆਪਾਂ CJI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NCC has offered its volunteer to fight with COVID-19 under an exercise named NCC योगदान। NCC द्वारा नेशनल कैडेट कॉप्स फुल फॉर्म याद रखनी है। NCC द्वारा कहा गया कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ वॉलंटियर ने ਉਹ ਅਸੀਂ हेल्प करने तैयार हाँ, रेडी हाँ टू फाइट विद COVID-19। एक एक्सरसाइज शुरू करांगे NCC योगदान। अपना क्वेश्चन है कि डायरेक्टर जनरल कौन ने NCC दे? नेशनल कैडेट कॉप्स के डायरेक्टर जनरल कौन ने? करैक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन राजीव चोपड़ा डायरेक्टर जनरल ने NCC दे। इस तो इलावा NCC की गल करिए 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ 1948 16 अप्रैल 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। हैडकुआटर ओबवियसली न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए इज अ मोटो इंपोर्टेंट बनता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन NCC का मोटो है, याद रखना है। बाकी ऑप्शन के SS देसवाल ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने SS देसवाल। इस तो इलावा BSF का एडिशनल चार्ज दिता गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल चार्ज दिता गया क्योंकि VK जौहरी इस दे हैड होंदे सी और इन्हों की बना दिता गया MP दे DGP बना दिता गया। AP माहेश्वरी CRPF लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए सी? AP माहेश्वरी, रिसेंटली अपॉइंटेड ने, याद रखने ने। राजेश रंजन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स इसके डायरेक्टर जनरल कौन ने? राजेश रंजन ने। इसके डायरेक्टर जनरल कौन ने? राजेश रंजन। ऋषि कुमार शुक्ला ने CBI के डायरेक्टर जनरल ने, यानी कि हेड ने CBI के ऋषि कुमार शुक्ला, RK शुक्ला CBI सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस इट्स फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव COVID-19 ट्रैकिंग ऐप नेम्ड एज। गवर्नमेंट द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, फर्स्ट COVID-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट द्वारा। इसका की नाम है? इसका नाम है आरोग्य सेतु नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बेसिकली इस एप्लीकेशन के एक प्रॉपर नोट्स दिते जाते हैं कि अगर 6 मीटर के अंदर थोड़े कोई COVID-19 का पेशेंट है तो उसको दसा जाता है, अनाउंस उस नोटिफिकेशन आती है कि इस एरिया तो दूर रहो या फिर इस एरिया के जा सकते हो, इस एरिया नहीं जा सकते। एक प्रॉपर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है आरोग्य सेतु, याद रखनी है। नेक्स्ट है विच कंट्री विल बी होस्टिंग द थर्ड एशियन यूथ गेम्स इन 2021। थर्ड एशियन यूथ गेम्स 2021 केड़ी कंट्री के अनाउंस किया गया? केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? अनाउंस किया गया एक होस्ट करेगी चाइना की एक सिटी है शोंताऊ सिटी है चाइना की। इस सिटी होस्ट करेगी थर्ड एशियन यूथ गेम्स। शुरू याद होगा मैंने एशियन गेम्स के बारे दसा सी कि एशियन गेम्स अलग है, एशियन यूथ गेम्स अलग है, याद रखना है। एशियन गेम्स 2022 एशियन गेम 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ एशियन गेम्स, ये हैल्ड ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ और 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ हैल्ड ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2022 और 26 कमेंट बॉक्स में दसना है कित्थे हैल्ड की जाएगियां। एक चाइना दे विच और एक जापान दे विच, ऑप्शन दे देना एक चाइना दे विच हैल्ड की जाएगियां और एक जापान दे विच। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस तो इलावा थर्ड एशियन यूथ गेम्स हैल्ड की जाएगियां चाइना दे विच 2021 दे विच। किहड़ी सिटी? शोंताऊ सिटी। इंपोर्टेंट है किहड़ी सिटी? शोंताऊ सिटी।
अगर आप पहले की गल करिए फर्स्ट टाइम ये हैल्ड की गई 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2009। ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट है टू विच कंट्री इंडिया हैज़ सप्लाइड अराउंड 6.2 टनस ऑफ मेडिसिन टू फाइट विद कोविड-19। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪਲਾਈਡ ਕੀਤਾ 6.2 ਟਨ ਦਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ। याद रखना है कोविड-19 के नाल फाइट करने के लिए 6.2 मिलियन ऑफ मेडिसिन 6.2 टनस ऑफ मेडिसिन 6.2 टनस ऑफ मेडिसिन संजीवनी ऑपरेशन संजीवनी याद रखना है ऑपरेशन संजीवनी के अंडर यह मेडिसिन प्रोवाइड की गई मालदीव को। मालदीव कैपिटल माले। नेपाल कैपिटल काठमांडू। और नेपाल बारे याद रखना है विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन लॉन्च किया गया सी टूरिज्म ਨੂੰ इंक्रीज करने के लिए नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ। नेपाल ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ लॉन्च ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ विद्या देवी भंडारी द्वारा इसमें लॉन्च किया गया सी। और यह कौन ने इत्थे दे प्रेजिडेंट ने विद्या देवी भंडारी। केपी शर्मा ओली का नाम भी याद रखना है, यह इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। बांग्लादेश बारे याद रखना है बांग्लादेश कैपिटल ढाका करेंसी टाका। डे नाइट टेस्ट मैच कित्थे हैल्ड किया गया कोलकाता के ईडन गार्डन दे विच। और इंडिया और बांग्लादेश का डे नाइट टेस्ट मैच हैल्ड किया गया या फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच भी कह सकते हैं। फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच या डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के नाल इंडिया ने खेलिया और इंडिया द्वारा जितया गया ईडन गार्डन कोलकाता के विच। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल है। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद। और इस तो इलावा पाकिस्तान बारे याद रखना है आरिफ अलवी इत्थे दे प्रेजिडेंट ने और इमरान खान इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। अफगानिस्तान दे अशरफ गनी इत्थे दे प्रेजिडेंट ने। याद रखना ने अशरफ गनी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पेंशनस टू एनकरेज बेनीफिशरीज टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। ਕਿਹੜੀ स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ पेंशनस की डोर स्टैप डिलीवरी यानी कि घर जाके पेंशन प्रोवाइड करने की एक स्कीम लॉन्च की गई किन्ना द्वारा किहड़ी स्टेट द्वारा आंध्र प्रदेश द्वारा। बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर याद रखने वाई एस जगमोहन रेड्डी ने और बिशप भूषण हरिचंदन इत्थे दे गवर्नर ने। ये याद रखने ने। अगर आप आंध्र प्रदेश की बारे एक होर चीज़ डिस्कस करिए आप स्कीम आप हुणे डिस्कस की थी किस दे लिए पुअर्स दे हाउसिस दे लिए एक स्कीम सी थोड़ा अगर आप याद रखनी किस तो याद रखना ईलू स्कीम IWLU ईलू स्कीम कित्थे दी आंध्र प्रदेश की। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश ने की किया मोबाइल हैंड सैनीटेशन सर्विस कित्थे शुरू कीतियां आंध्र प्रदेश ने। इस तो इलावा अगर आंध्र प्रदेश की स्कीम्स के बारे गल करिए नेतनम नेस्टम स्कीम अम्मा बोधी स्कीम ला नेस्टम स्कीम ये सारी स्कीम्स कित्थे दियां ने आंध्र प्रदेश दी। झारखंड द्वारा रिसेंटली किहड़ी स्कीम लॉन्च की गई सी किस दे लई झारखंड द्वारा लॉन्च की गई सी किहड़ी स्कीम कोविड-19 के लिए कोई स्कीम याद आती है झारखंड की। अगर कोई आती है तो कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दसो किहड़ी प्रज्ञान एप्लीकेशन। राजस्थान द्वारा राजकोप सिटीजन कोविड-19 के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश द्वारा मी बड़ी एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी अरुणाचल प्रदेश द्वारा। पंजाब द्वारा कोवा पंजाब एप्लीकेशन पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई सी। ठीक है जी, सारी इंपोर्टेंट ने याद रखनिया ने। नेक्स्ट है IBM has started Watson Assistant for the citizens of India for queries related to COVID-19. Who is the CEO of IBM?
IBM की गल करिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीनस, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यदि गल करिए वाटसन असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस बनाई गई इन्हों द्वारा IBM द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए यह बनाई गई। ठीक है, इसकी किस दे लिए कि अगर कोविड-19 के लिए किसी ने कोई क्वेरी है तो वो इत्थे पता कर सकता है। ठीक है, अपना करैक्ट आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है CEO ऑफ IBM। CEO कौन ने IBM दे? अरविंद कृष्णा। फोर्थ ऑप्शन अरविंद कृष्णा किस दे CEO ने? IBM दे CEO कौन ने? अरविंद कृष्णा। और इंपॉर्टेंट है इन्हों का नाम क्यों? क्योंकि ये कल ही अपॉइंट किए गए हैं, बेसिकली कल नहीं अज किए गए हैं, अज 6 अप्रैल है, अज ही अपॉइंट किए गए हैं, 6 अप्रैल को अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि अज तो इन्हों का टेन्योर शुरू होएगा। अपॉइंटमेंट इन्हों की काफ़ी पहले अनाउंस कर दी गई थी, पर अज तो इन्हों का टेन्योर शुरू होएगा। बाकी ऑप्शन की गल करिए, संदीप पाटिल का नाम भी याद रखना, IBM के रिलेटेड है। कुछ महीने पहले की अपॉइंटमेंट इन्हों की आई थिंक फरवरी के आप डिस्कस की थी, इन्हों MD अपॉइंट किया गया सी IBM का इंडिया के MD ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया ऑफ IBM, MD ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया के लिए और साउथ एशिया के लिए IBM का MD अपॉइंट किया गया सी संदीप पाटिल को। संगीता रेड्डी का नाम इंपोर्टेंट है, फिक्की के चेयरमैन ने, फिक्की के चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी। श्रीधर पात्रा नालको के चेयरमैन, नालको के नैशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, नैशनल एल्यूमीनियम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते, कंपनी लिमिटेड कह सकते हैं, इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी श्रीधर पात्रा। राजीव बंसल एयर इंडिया के CMD अपॉइंट किए गए सी राजीव बंसल। कौन अपॉइंट किए गए सी? राजीव बंसल। नाम याद रखना इंपोर्टेंट है। अज लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।